Welcome all to the Shri Institute, and today I've decided to start with English. Now you must be knowing that there are two books that will be dealing in A standard, that is, one is Honeydew and the other will be It So Happened. So I have picked up the first chapter of Honeydew, and that is the best Christmas present in the world. Now here, it's not just that we are going to read through and just learn the question answers and all, but in English especially, as we will move ahead with the chapter, you will see that there will be meanings on the same slide. A part of the screen will be covering your textual paragraph, and on the right hand side you will always see the meanings, the hard words. So you need to learn and understand it properly when you are going through it the first time, second time. And still, if there are some doubts, you can give us a call. The second thing is, it's a good part that you all can see us. Yes, a sad part for me is that I can't see my children over here, but it's okay. I hope, and yes, I believe indeed that very soon we will meet face to face and make the lectures still more enjoyable. So till then, let's start with this chapter. And your English chapters will be also including some videos in between related to the chapters, to the stories, which will make it more interesting for you. So let's start. The best Christmas present in the world. Now here, as you see, is given in the textbook also that before you read, there are so many dates or periods of time in the history of the world that are very important. So people remember them, they know about it. Now, I don't think so in history we find your birth date or my birth date or some other such things, and but history is related to the dates and events which are very important from the world point of view, if it's India, from our country point of view. And like we can say 15th August, yes, unique, very important date, so we remember it as an Independence Day. Then you have 26th Jan as your Republic Day. So in the same way, World War I, 1914, World War II and so on. So people remember such great important dates and years. And the story that we will read over here also mentioned once a date and event, and that was the First World War. But we are not going to talk about history and all over here. But there is a story hidden that took place during this First World War, and a war between, that was British and German in 1914. Later on it was the World War, but it started from here. So let's guess which war it is. I told you before that, First World War. So start with the story. Now these are some of the days that you will see ahead, what it referred to, or you can find it out also. But till then, we start story from here, and you can see the word over here, spotted, and junk shop, so roll top desk. Many such words will flow in your chapter, which you can see on the right hand side. यहाँ पे तुम मीनिंग देख सकते हो. तो ये पार्ट तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा जब सेकेंड टाइम रीड करोगे, उसे सुनोगे, राइट. सो आई स्पॉटेड. स्पॉटेड मतलब मैंने देखा, मैंने नोटिस किया. इट मतलब ये. Here you will see some part over here, that is ये. यहाँ पे ये रोल टॉप डेस्क है जो आई मतलब ऑथर ने देखा इसे एक जंक शॉप में. अब जंक शॉप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जंक शॉप मतलब कबाड़ी खाना, जहाँ पे पुरानी चीज़ें लोग बेचने जाते हैं, राइट, जो उनके लिए शायद घर में कोई काम की ना हो. तो ऐसे ही एक रोल टॉप डेस्क वहाँ पे पड़ा हुआ था.
जो ऑथर ने देख लिया। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एन ओक। अब जो कबाड़ी वाला था, ये जंक शॉप वाला, उसने ऑथर को क्या कहा इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन मांगने पे कि ओक ट्री के लकड़े से बना है और अर्ली 19th century, अर्ली 19th century मतलब समवेयर 1800 या 1810, 20, इसको हम कहते हैं अर्ली 19th century। तो ये तब का बना है। अब मुझे तो ऐसे पहले से ही चाहिए था। आई हैड वॉन्टेड वन, आई हैड वॉन्टेड वन, मतलब कि पास्ट में मुझे ये चाहिए था, ये मेरा एक ड्रीम था या ज़रूरियात तो नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ऐसे टेबल पसंद थे। लेकिन जब भी खरीदने जाता तो देखता कि बहुत महंगा है, तो मैं वापस लौट आता घर पे, राइट। सो आई हैड ऑल्सो वॉन्टेड वन, बट येस दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे ये। हाउएवर, मैंने देखा कि ये जंक शॉप में ये जो था ओक का बना हुआ टेबल, वो बैड कंडीशन में था। नेचुरली आज का खरीदा हुआ 1-2 साल यूज़ किया हुआ हम कबाड़ी वाले को नहीं बेचते। टूटा फूटा जला हुआ या कुछ काम का ना हो तो हम जाके कबाड़ी खाने में बेच के आते। तो वैसे ही कोई बेच के गया होगा तो नेचुरली बैड कंडीशन में था ये। रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। अब उसका जो टॉप था वो काफ़ी हिस्सों में टूटा हुआ था, ये वाला पार्ट, राइट। और ये उसके ड्रॉर्स हैं। सो नाउ इट सो हैपन कि रोल टॉप वॉज इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजिली मेंडेड। क्लमजिली मतलब जैसे तैसे, बिना ध्यान दिए उसे रिपेयर किया गया था, उसके टेबल के एक पैर को। स्कॉर्च मार्क्स मतलब जले हुए मार्क्स थे उसके एक साइड, और बहुत कम दाम में बेच रहा था वो दुकान वाला। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी। सो आई थॉट आई शुड रेस्टोर इट। मैंने सोचा चलो खरीद लेते हैं, घर पे जाके कुछ रिपेयर कर लेंगे। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। अब ये तो रिस्क तो था ही, इसमें चैलेंज भी था। क्यों बे रिस्क था? क्योंकि मैं पैसे दो, कम पैसे, लेकिन दे तो रहा था पैसे, और टूटी फूटी जली चीज़ को मैं घर पे लेके आ रहा था। तो रिस्क तो था कि कितना टिके वो मेरे घर में। फिर भी चलो उठा लिया, बट आई हैड टू हैव इट, क्योंकि ये मेरा सपना भी था, मेरी मनपसंद चीज़ कम दामों में मिल रही थी। नाउ आई पेड द मैन, तो मैंने पैसे दे दिए दुकान वाले को, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। और गराज के पीछे मेरा जो वर्क एरिया था, वहाँ पे मैंने ये टेबल रख दिया जहाँ पे मैं हमेशा काम करता। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। अब क्रिसमस ईव क्या है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये द डे और द इवनिंग बिफोर क्रिसमस डे। अब क्रिसमस कब होता है? 25 जैन, उसके पहले का एक दिन मतलब 24 दिसंबर। तो 25 दिसंबर और दैट इज क्रिसमस, एंड 24 दिसंबर इज द डे बिफोर क्रिसमस डे। तो 24 दिसंबर को हम कहेंगे क्रिसमस ईव। सो नाउ बैक टू इट। तो मैंने सोचा चलो काम शुरू करते हैं, और क्रिसमस ईव मतलब 24 दिसंबर को मैंने काम शुरू कर दिया मेरा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली। अब ऊपर का जो टूटा फूटा मैंने पूरा निकाल दिया। पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, ड्रॉर्स एक के बाद एक निकालने लगा। वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वीनियर मतलब ऊपर का जो टेबल और उसके साइड में जो हम एक फॉर्माइका लगाते हैं, वो पूरा निकल चुका था यहाँ वहाँ। इट क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। टॉल मतलब बहुत बुरी तरह से टेबल अफेक्ट हुआ था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। अब बहुत खींचा, लेकिन लास्ट ड्रॉर नहीं खुल रहा था। तो अब मैंने क्या किया? I tried all I could to ease it out gently. पहले तो ट्राई किया, चलो पहले एक ईजिली ट्राई करें, नहीं खुला। जोर से मुक्का मार के खोला, ब्रूट फोर्स मतलब एकदम एक्सट्रीम, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी मेरी मैंने। I struck it sharply with the side of my fist. फिर भी नहीं खुला। फिर अचानक ड्रॉर एकदम खुल गया, and the drawer flew open to show मतलब to reveal
अ शैलो स्पेस, एक खाली एक जगह पड़ी हुई थी उस ड्रॉर के अंदर, अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। मतलब एक तो पहले ड्रॉर खोलो, ड्रॉर के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट जगह थी जिसके अंदर मिला, हाथ डाल के देखा तो ब्लैक टिन बॉक्स। मतलब कि लास्ट ड्रॉर में हाथ डाल के देखा तो एक सीक्रेट एरिया, छोटा सा ड्रॉर, उस ड्रॉर के अंदर हाथ डाल के देखा तो एक छोटा सा टिन बॉक्स, ब्लैक टिन बॉक्स मिला, राइट। अब देखते हैं आगे। सेलो टेप्ड, अब उसके ऊपर तो सेलो टेप मारी हुई थी, लेकिन सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। मतलब कि अब सोचो, ये बॉक्स है, वो ये वाइट है, हम सोच लेते हैं ये ब्लैक टिन बॉक्स जो उसे मिला अंदर से, ये ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर एक पेपर अटैच था, पेपर के ऊपर एक सेलो टेप लगाई हुई थी, अंडरस्टूड, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, फिर ऐसे ट्रेम्बलिंग, तो ऐसे हाथों से कुछ लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 Jan 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। अब ये पेपर के ऊपर लिखा हुआ था और ये पेपर अटैच कहाँ था, चलो लेट मी शो यू नाउ। ये क्या है, ड्रॉर जो मुक्का मार के खींच के खोला था, राइट। उसके अंदर ये सीक्रेट ड्रॉर निकला, उसके अंदर निकला ये ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्या था, राइट, ब्लैक बॉक्स के ऊपर ये पेपर सेलो टेप से लगाया हुआ था और उस पर क्या लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 Jan 1915, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अब उसमें ये भी लिखा था कि जब मैं मर जाऊं और मुझे दफनाओ तो मेरे साथ ये लेटर को साथ में दफना देना, अंडरस्टूड। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब ये मेरी ओर से गलत चीज़ थी कि मैं ये बॉक्स खोलने जा रहा था। अब देखो क्या होता है, से दैट मम्मी कुछ लेके आई मस्त एकदम, कुछ मिठाई शॉप से या कुछ एनीथिंग लाइक समथिंग वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, राइट। अब अचानक जैसे वो घर में आती है वो सरप्राइज लेके बॉक्स में, तुम्हें बता भी दिया उसने कि चलो भाई सरप्राइज है तुम्हारे लिए, खोलते हैं 5 मिनट में, तब तक कोई फ़ोन कॉल आ जाए, मम्मी कहती आती हूँ आधे घंटे में, कुछ इमरजेंसी है, बॉक्स को टच मत करना। अब मम्मी को हो गया आधा घंटा, पौना घंटा, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, तुम तब तक तो वेट करने वाले हो नहीं, मैं होती तो मैं भी वेट नहीं करती। हम क्या करते हैं, आगे जाओ पीछे जाओ, आगे बढ़ो पीछे जाओ, क्या किया जाए, बॉक्स को हाथ में उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा, क्यों, क्या कहा था मम्मी ने, मत छूना उसे, हम साथ में खोलेंगे ये। अब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, यार ये मम्मी तो 1 घंटा हो गई, आधा घंटा बोल के गई थी, आई नहीं, तो क्या किया जाए, चलो खोल ही लेते हैं। दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी, और हर एक ह्यूमन बीइंग में ये क्यूरियोसिटी होती है। तो ये आदमी ने भी उस बॉक्स को खोला। अब हमें भी लगता है भाई नहीं खोलना था, बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, फिर भी एक इच्छा जागती है कि चलो खोल लेते हैं। वैसे एक आदमी के मन में भी आई ये इच्छा, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स मतलब डाउट, हेजिटेशन, गॉट द बेटर ऑफ माई हेजिटेशन मतलब वो बार बार हेजिटेट हो रहा था ना कि बॉक्स खोलूं या ना खोलूं, खोलूं या ना खोलूं, लेकिन ये हेजिटेशन से ज़्यादा क्या काम कर गया, क्यूरियोसिटी, एज इट यूजुअली डज, यूजुअली मतलब नॉर्मली सभी ह्यूमन बीइंग में ये होता है, तो मैंने भी वो खोल दिया। अब हुआ ये, बॉक्स जैसे खोला उसके अंदर निकला एक एनवेलप,
उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफिसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, अनफोल्डेड इट। अब ये तो बुरा है ना, किसी का लेटर खोल के रीड करना बहुत बुरी बात है। वंस अगेन देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, चलो खोल लेते हैं। तो ये धीरे से ये जो लेटर था उस आदमी ने देख लिया, कोई है तो नहीं। अब उसके रूम में तो कोई था ही नहीं, उसी का घर था, उसी की रूम थी। तुम होते तो क्या करते, कोई देख तो नहीं रहा, मम्मी आ तो नहीं रही, चलो फटाफट बॉक्स खोलते हैं, क्या है सरप्राइज अंदर देख लो। अब ये आदमी से भी नहीं रहा गया, उसने देख लिया। I took out the letter, unfolded, मतलब opened it. It was written in pencil and dated at the top. December 26, 1914. Got it? This was when the World War was going on. Now, what did the author find in the junk shop? ये तो सबको पता है, क्या मिला था, उसने क्या देखा था कबाड़ी खाने में, एक पुराना ओक का रोल टेबल। What did he find in the secret drawer? A black tin box. Who do you think had put it in there? अब वो तो देखते हैं, आगे जैसे हम स्टोरी में बढ़ेंगे पता चलेगा। लेकिन यस, शायद ये मिसेस जिम ने रखा होगा। अंडरस्टूड? अब मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया, हिंट दे दी तुम्हें। सो लेट्स मूव अहेड। अब ये हुआ सेकंड पार्ट। लिखा था ये पेपर में, मतलब लेटर में। अब ये लेटर स्टार्ट हो रहा है, जो वो ऑथर रीड कर रहा है, किसी का लेटर। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब अभी मैं बहुत खुश हूँ। सो आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस। अब भी थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी बात हुई हमारे साथ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो लिख ही दूँ तुम्हें लेटर में ना। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, लेट मी शो यू 2 पिक्स ओवर हियर, तो तुम्हें थोड़ा ठीक से पता चले कि वॉर टाइम में लोग ट्रेंचेस में कैसे छिप के गोलियां चलाते हैं। तो हियर यू कैन सी, ये है, ये सोल्जर्स हैं, ये ट्रेंच है, ये सोल्जर नहीं है। इट्स अनदर क्लियर पिक्चर टू शो यू कि ऐसे खड्डा खोदते हैं और बिना पानी वाला ऑफ कोर्स। अब ये है वो पार्ट जहाँ पे सोल्जर्स अंदर छिप जाते हैं और फिर यहाँ से गोलीबार होती है, दैट इज गन चलाना, राइफल चलाना, राइट। नाउ बैक। तो नाउ वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अ ट्रेंचेस। तो ये ट्रेंच है, ये वाला ट्रेंच है, लेकिन ये वाला बिना पानी का होता है। येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, और बहुत ब्यूटिफुल मॉर्निंग थी, पीस एवरीवेयर, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और जैसे क्रिसमस की सुबह होती है ठंड एकदम, वैसे ये भी कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड। सो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू वॉट दैट वी बिगैन इट। अब क्या हुआ, चलो मैं बता ही दूँ। बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। अब फ्रिट्ज एक कॉमन नाम होता है, जैसे हमारे यहाँ रानी एंड मेघा एंड राज, सोहम, तो ये सारे जो हम में जो कॉमन नाम होते हैं, वैसे जर्मन्स में और ब्रिटिशर्स में उनके कॉमन नाम बच्चों के रख देते हैं। तो यहाँ पे भी एक नाम है फ्रिट्ज और दूसरा एक नाम है टॉमी। तो ये जो आदमी जो लेटर लिख रहा है, उसने कहा कि मैं ट्रुथ ये बता रहा हूँ कि चीज़ बहुत अच्छी हुई है हमारे साथ, लेकिन आई एम अशेम्ड। क्यों?
क्योंकि ये जो अच्छी चीज जिसने स्टार्ट की वो कौन था? फ्रिट्ज। फर्स्ट समवन सॉ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। अब ये कौन सा सीन हुआ? वॉर फील्ड का। अब सामने की पार्टी, अब देखो एक पार्टी ये है, एक पार्टी सामने। अब ये जो दो पार्टी हैं, मतलब कि दो अलग कंट्री है, एनिमी, तो यहाँ पे वाइट फ्लैग वाले अपने ट्रेंच में ऑपोजिट साइड वाले खड़े थे। एंड देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड मतलब एक ऐसी जगह जो जिसपे किसी का होल्ड ना हो, जो कोई कंट्री का ना हो, या एक फैलो लैंड, बैरन लैंड, लेकिन इसका कोई ओनर ना हो, तो ये नो मैन्स लैंड है। तो नो मैन्स लैंड की एक और है जर्मन, दूसरी और है ब्रिटिश। तो सामने वाली पार्टी हमें बुला रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो लोग हमें टॉमी कह के बुला रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक कॉमन नाम होता है टॉमी। तो उन्होंने हमें, अब उनको तो हमारा नाम पता नहीं होगा, तो उन्होंने टॉमी कह के हमें बुलाया और हमें कहा मैरी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." पहले तो शॉकिंग लगा, सरप्राइजिंग, कि एनिमी पार्टी हमें विश कर रही है। फिर हमने भी हाथ ऊपर करके ऐसे कह दिया ऑपोजिट एनिमी पार्टी को, सेम टू यू, मैरी क्रिसमस फ्रिट्स। अब हमने सबको क्यों फ्रिट्स कह के बुलाया? वंस अगेन, जर्मन कॉमन नेम फ्रिट्स। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मतलब चलो, मैंने सोचा यहीं पे बात खत्म हो गई। वी ऑल विश्ड ईच अदर मैरी क्रिसमस। बट यहाँ पे रुका नहीं है। सडनली वन ऑफ देम फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी, देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, वेविंग अ वाइट फ्लैग। तो मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस से बंद नहीं हुआ। सामने की पार्टी से एक आदमी आया, बड़ा सा ग्रे कोट पहन के, और उसने अपने हाथ में, यू कैन से, कुछ ऐसा वाइट फ्लैग हिला रहा था। डोंट शूट लैस, लैस मतलब बॉयज, शूट मत करना, समवन शाउटेड, एंड देन नो वन डिड। तो हमने, किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापिट। पैरापिट मतलब, देखो बताऊं मैं, ये होती है पैरापिट, ये पैरापिट होती है, राइट। तो किसी ने कहा कि, शाउट किया कि भाई, वो भी अपने ट्रेंच में से बाहर निकले और शाउट कर रहे थे, भैया शूट मत करना। देन देयर वाज अनदर, एक और जर्मन आ गया, एंड देन अनदर। तो सारे हमारी ओर आ रहे थे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन। लेकिन हमारी ओर से हम डर गए थे। मैंने शाउट किया अपने लोगों को, अपनी आर्मी को, कि ये ट्रिक है, ये लोग एक प्लान बना रहे हैं हमें शूट करने का, तो चलो सब अपने अपने ट्रेंचेस में अपना सर नीचे कर दो, छिप जाओ नीचे। बट नहीं, ये ट्रिक नहीं थी। तो चलो और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक स्लाइड और कर लेते हैं। अब हुआ ये, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अब एक जर्मन, जिसको हम कौन से कॉमन नाम से बुला रहे थे? फ्रिट्स। तो वो एक बॉटल लेके ऐसे सर पे रख के नाच रहा था, राइट, और ऐसे हाथ भी हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वो हमें बुला रहा था सबको टॉमी करके, कि आज क्रिसमस है। वी हैव स्नैक्स, मतलब एक जर्मन ड्रिंक है। वी हैव सॉसेज, एक नॉन वेज खाना भी है, तो हमारे पास ड्रिंक भी है, थोड़ा खाना भी है। वी मीट यू, यस, चलो हम आए तुमसे मिलने, पार्टी करते हैं, क्रिसमस है आज। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम कमिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। लेकिन किसी के हाथ में राइफल नहीं थी, सबके हाथ में क्या था? बॉटल एंड खाना। तो सब हमारी ओर आने लगे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस,
वॉज द फर्स्ट अप। अब एक आदमी आया सबसे पहले। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? आ जाओ, आप भी आ जाओ हमारी तरफ, और हम ना तुम्हारे और होंगे ना हमारे और। कहाँ मिलेंगे? नो मैंस लैंड, जो ना ब्रिटिशर का लैंड है ना जर्मन का, राइट? जो किसी का नहीं है, वहाँ पे हम बीच में मिलते हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। सब आ रहे थे हमारी ओर। आई वॉज द ऑफिसर। I should have stopped my men and then I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. अब मैं तो उस ग्रुप का लीडर था, तो मुझे क्या करना चाहिए था? जैसे एनिमी पार्टी हमारी ओर आ रही थी, तो मुझे अपने लोगों को क्या कहना था? स्टॉप, डोंट गो देयर, डोंट मीट द एनिमी। लेकिन मैंने किया ही नहीं। मैंने जाने दिया अपने लोगों को भी, मैं भी चल पड़ा। As long their line and ours I could see men walking slowly towards one another. फिर धीरे 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 उनके लोग हमारी ओर, हमारे भी यहाँ पे, दोनों मिले एक जगह पे in middle. There were grey coats, khaki coats meeting in the middle. And I was one of them. और मैं भी उस ग्रुप का एक हिस्सा बन गया। I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. और वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन हम यहाँ पे दो पार्टी के लोग प्यार से मिल रहे थे। सो आई स्टॉप ओवर हियर टुडे। रीड कर लेना एक बार, सारे मीनिंग्स हर एक स्लाइड के यहाँ तक के लर्न कर लेना। एंड वी मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Not chapter, indeed, babies. It's a story, interesting story with a video at the end. You will enjoy it surely. Thank you. Enjoy your day. Play a lot, but study also along with it. Thank you so much.